यस। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो यूनिट्स है, तो यूनिट्स के बारे में हमने सब डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम वो एक बार रिपीट भी करेंगे और उसके भी आगे जाएंगे। तो जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूले लिखे थे। सबसे पहला हमने देखा था वेलोसिटी, which is defined as the change in distance upon time, करेक्ट है। जिसके कारण उसका जो यूनिट है वो बनता है मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, नो डाउट। दूसरा है एक्सेलरेशन, which is defined as the change in velocity upon time, and hence its unit becomes meter per second square, right, and centimeter per second square. Okay, and also we have seen the next quantity, that is about the momentum. Okay, so momentum is defined as mass into velocity, correct है, mass into velocity, and because of that its unit, SI unit actually becomes kilogram meter per second, and the CGS unit becomes ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये यूनिट हमने देखे थे। और इसके अलावा फोर्स के बारे में भी हमने देखा था। फोर्स which is going to be actually mass into acceleration, and hence its unit actually becomes, it should be kilogram meter per second square, and CGS unit should be gram centimeter per second square. But actually this whole thing is supposed to be equivalent to Newton, and this gram centimeter per second square is actually supposed to be equivalent to dyne। ठीक है, इसको हम पूरे को डाइन बोल देते हैं। तो इस तरह से फोर्स के यूनिट्स जो है वो न्यूटन और डाइन ये दोनों बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था एरिया और वॉल्यूम। एरिया इज डिफाइंड एज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, so that its unit becomes meter square and centimeter square. On the other hand, volume can be defined as length into breadth into height, so its unit will be meter cube and centimeter cube. Yes, again we can just see that the next quantity we can just say, which depends on the force actually, is going to be work done। Okay, work done। work done का फॉर्मूला क्या होता है पता है सबको? Work done is actually defined as the force into displacement। लेक्चर में हूँ, वो उसमें से नंबर डालिए ऐसे। आपके पास नहीं है वो है? ठीक है, हाँ ठीक है, आइडिया और पास करना।
sorry. Okay, so what we are saying is just work done is equal to force into displacement, right? So because of that, the unit of work done should actually be the Newton meter. Okay, Newton meter. SI unit should be Newton meter, and the CGS unit should be actually dyne centimeter. Okay, ये यूनिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर से हम क्या करते हैं, ये जो न्यूटन मीटर है इसको एक्चुअली जूल बोल देते हैं। It's given the new name, that is joule. And similarly here dyne centimeter can be considered as erg. Okay, तो इसको हम erg बोल देते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, समझ करो ठीक से। ये न्यूटन मीटर का मतलब जूल होगा और डाइन सेंटीमीटर का मतलब erg होगा। यस, नेक्स्ट क्वांटिटी वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इज द प्रेशर हियर। और चलो पावर के बारे में अगर बात करते हैं, पावर, तो पावर कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है पावर के लिए। बट अभी वर्क डन का यूनिट क्या है, हमको पता है जूल। सो हियर इट इज जूल पर टाइम का यूनिट सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड शुड बी द यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट। एंड सीजीएस यूनिट शुड बी एक्चुअली अर्ग पर सेकेंड, राइट, अर्ग पर सेकेंड। But here this joule per second is supposed to be equivalent to watt, remember. And at the same time erg per second is not supposed to be equivalent to anything. इसको ऐसे ही रखते हैं, erg per second is supposed to be same as erg per second only, but this joule per second will become equivalent to watt. ठीक है, उसको हम सिंगल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, that is watt. Okay, then next comes to, you can say, impulse. Yes, impulse can be defined as the force into time. Remember, force into time is called as impulse. तो अभी फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट हमको पता है न्यूटन है, यहाँ पे हमने देखा था, और टाइम का यूनिट सेकेंड है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो एसआई यूनिट है वो बनने वाला है न्यूटन सेकेंड, राइट। एंड सीजीएस यूनिट क्या बनेगा, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। तो इसलिए यहाँ पे हमको मिलेगा डाइन सेकेंड। Okay, dyne second. This will be the CGS unit of impulse, remember. And in the same way here we can just talk about the pressure also. तो प्रेशर के बारे में अगर बात करते हैं, तो प्रेशर के बारे में हमको पता है प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी सोचो प्रेशर को अगर हमको फोर्स अपॉन एरिया बोलना है तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ प्रेशर विल एक्चुअली बी unit of force, that is Newton, per unit area. Unit of area is meter square, तो इसलिए यहाँ पे वो बन गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। But once again this Newton per meter square is actually called as Pascal in the memory of the scientist Pascal. So this will be equivalent to Pascal. But the CGS unit is just left as it is, that is dyne per centimeter square. Okay, so dyne per centimeter square is not given a new name, but it is kept as it is. But this Newton per meter square is just called Pascal. So in this way प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल बन जाता है इस तरह से, ठीक है। और डेंसिटी के बारे में तो कल ही हमने बताया था, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास अपॉन वॉल्यूम। यस, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड हेंस इट्स एसआई यूनिट कैन बी एक्चुअली रिटन टू बी किलोग्राम पर meter cube, and at the same time the CGS unit of density can actually be supposed to be gram per centimeter cube. Okay, in this way. तो ये जो है डेंसिटी के यूनिट्स हो गए। यस, अभी ये सारे जो यूनिट्स है, तो इवन इससे भी आगे जाके हम ये बात देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, डू यू नो हाउ द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन हो, it is actually defined as the number of revolutions per unit time, correct है। so frequency is defined as number of revolutions per unit time. Okay, yes, but here number of revolutions don't have any unit, but time has a unit, and that's why the frequency will be measured in second inverse. Remember, second inverse, which can be supposed to be equivalent to hertz. Remember,
अभी इसमें क्या है ना कि सीजीएस यूनिट भी वही होगा, सीजीएस यूनिट हो या एमकेएस यूनिट हो, दोनों को हम सेकेंड इनवर्स से लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डजंट हैव एनी यूनिट, इट्स प्योर नंबर, एंड दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन is unitless, but time has a unit, that is second, but that is in denominator, and therefore it will be expressed as second inverse, and which will be actually equivalent to hertz in this way. तो ये हम समझ सकते हैं. Yes, and apart from this, many quantities which are there in the part 2, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर के भी जो क्वांटिटीज है उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, सेम वैसे ही. जैसे देखो अभी चलो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तो तुमको पता है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इटसेल्फ, राइट? इलेक्ट्रिक करंट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो चार्ज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है ऐसा. तो इसलिए यहाँ पे जो चार्ज का जो यूनिट है वो होना क्या चाहिए एक्चुअली? एम्पियर सेकेंड होना चाहिए, नो डाउट. बट चलो ठीक है, चार्ज का जो यूनिट है वो हमको पता है कूलम है, ठीक है, कूलम. यस, एंड द सीजीएस यूनिट इज एक्चुअली स्टैट कूलम, वो भी याद रख लो, स्टैट कूलम. और फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम बोल सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड? The potential difference between the 2 points is defined as the work done to bring 1 coulomb charge once around the whole circuit, ठीक है, और from one point to other point. So work done per unit charge is actually called as the potential difference. तो ये उसका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है. तो उसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन का यूनिट क्या होना चाहिए? वर्क डन का यूनिट है जूल, राइट? और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. तो चार्ज जूल पर कूलम should be the unit of potential difference, but this joule per coulomb is supposed to be equivalent to volt. Remember, joule per coulomb का ही मतलब volt हुआ करता है, याद रखो ठीक से, ठीक है. फिर उसके अलावा अगर हम हीट सेक्शन में आ जाते हैं, हीट सेक्शन के अंदर, अच्छा नो डाउट रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड हियर. जैसे हम जानते हैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस upon current, right? So potential difference upon current will be called as the resistance. So what should be the unit of resistance? It should be volt per ampere, but this volt per ampere is actually given a new name, that is called ohm. Okay, so resistance is measured in ohm in this way. तो ये हम करते जाते हैं. और इवन हीट सेक्शन में अगर आ जाते हैं तो do you know what how the specific heat is defined? Specific heat, it is defined as the amount of heat absorbed by the substance per unit mass of the substance per unit rising temperature of the substance. Okay, तो ये basic definition है specific heat का. तो specific heat will be actually equal to उसका जो unit है, ऐसा unit क्या होगा? Heat is measured in joule, it's energy again, so joule per kilogram and Kelvin, ये बन जाएगा उसका ये ऐसा unit in this way. तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं. और इवन उसका सीजीएस यूनिट भी निकाल सकते हैं. जूल के बदले क्या आने वाला है? अर्ग. और किलोग्राम के बदले ग्राम, और ये केल्विन एज इट इज. सो इन दिस वे वी कैन जस्ट गेट द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज इन दिस वे. ओके, तो ये सभी जो क्वांटिटीज है इनके यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स 2 मिनट्स में लर्न करो फटाफट. आई एम गोइंग टू आस्क द units SI unit and CGS unit of each and every quantity, ठीक है, to all of you. If you want you can just write it down or just take the screenshot. Just I will give you 10 seconds.
Yes, finish with this. हो गया लन? प्रसाद, राकेश? Done, sir. Okay. Yes, sir. Okay. चलो ठीक है. So tell me one by one. ठीक है, अभी माइक थोड़े समय के लिए अनम्यूट रखो. ये रब करो ना. चलो ठीक है. Yes. माइक अनम्यूट रखो दोनों थोड़े समय के लिए. हाँ सर. Yes, you have to answer the questions. Tell me, what is the SI unit of pressure? So pressure is Newton per meter square. And it is called? 9 cent. No, it is known as Pascal's PA. Yes, Pascal. It's given a new name, that is Pascal. Correct. Yes, sir. That's right. Yes. Rakesh, tell me the SI unit of power. So joule per second. Joule per second. And what is it called? Energy. Hmm? Energy. No. It's called watt. Yes. Okay. Watt. Watt. Okay. Yes. Prasad, Yes, sir. SI unit of momentum. So momentum is kilogram meter per second. Correct. Kilogram meter per second. Right. Rakesh, tell me the formula for work done. Work. So power up into time. Yes. So force into displacement. Yes. Force into displacement. Very good. Okay. So ठीक है, डेंसिटी का बताओ प्रसाद. Mass into volume. यस, मास अपॉन वॉल्यूम. Volume. ओके, तो सीजीएस यूनिट क्या है उसका? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. राइट. और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है राकेश? प्रेशर Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया. वेरी गुड. इंपल्स का बताओ प्रसाद? फोर्स इनटू टाइम. टाइम. वेरी गुड. ओके. एंड रेजिस्टेंस का बताओ राकेश? Resistance. फॉर्मूला बताओ पहले. Upon सर मैं potential difference upon current. Hello. हाँ, ओके. हाँ बोलो. Potential difference upon current. Yes, potential difference upon current. Very good. And its SI unit is? SI unit is Ohm. Right. And potential difference का SI unit क्या है? potential difference का sir don't know. Volt. है कि नहीं? Oh yes sir. Volt. हाँ सर. Remember. और potential difference का formula क्या है? How it is defined? Work upon charge. Work upon charge. Work done upon charge. Right. और charge का formula क्या है? In terms of current? Current into time. Correct. Current into time. Very good. चलो ठीक है. So ये सब चीजें जो है तो वो लर्न करके रखनी है, ठीक है ना? अभी एटलीस्ट इस चैप्टर के अंदर हमको इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर थोड़ा सा डील करना है, इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर थोड़ा खेलना है.
तो इसलिए ये सारे फॉर्मूले जो है वो बिल्कुल बाय हार्ट करके रखो, लर्न करके रखो, एंड अलॉन्ग विद देयर एसआई यूनिट्स एज वेल एज सीजीएस यूनिट्स आल्सो। ओके, बट अभी यहाँ से आगे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है इस चैप्टर के अंदर का, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर बेसिकली। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स इज डिफाइंड एज द मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, और उसका जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, मास का यूनिट जो कि किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन का यूनिट जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, यस सर। ये होना तो चाहिए, लेकिन हम बोलते क्या है इसको, न्यूटन। न्यूटन। सोचो जब हम इसको न्यूटन बोलते हैं तो न्यूटन बोलने से ये किधर से भी पता नहीं चलता कि ये फोर्स मास पे डिपेंड करता है या लेंथ पे डिपेंड करता है या टाइम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। इसीलिए हमको यहाँ पे ये एक डायमेंशन करके एक सेपरेट कंसेप्ट डिफाइन करना पड़ता है, ताकि हमको डायमेंशंस यूज करके एटलीस्ट ये पता चल सके कि ये क्वांटिटी, फोर्स जो क्वांटिटी है वो कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर एग्जैक्टली डिपेंड करता है और किस तरह से करता है, डायरेक्टली करता है या इनवर्सली करता है। जैसे यहाँ पे मास के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है, लेकिन टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और वो भी इनवर्सली। तो ये सब चीजें हमको यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर पता चलती है। जैसे देखो अगर सपोज हम डायमेंशंस निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी का अगर डायमेंशन निकालना है तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी इसमें हमको ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन लेंथ डायरेक्टली एंड टाइम इनवर्सली। तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या सर टाइम इनवर्सली कैसे निकाला आपने टाइम इनवर्सली ये because of its definition itself, velocity is defined as distance upon time, बराबर। तो यहाँ पे velocity का फॉर्मूला क्या है, distance upon time, ठीक है नहीं, तो टाइम। we say that this Yes, sir. velocity is proportional to the distance, ठीक है, हाँ यस सर। velocity will be inversely proportional to the time like this। ओके सर। so in this way समझ गया। जो न्यूमरेटर में है उसके साथ वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा ऐसा कहा जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसके बारे में हम बोलते हैं कि डिपेंड्स ऑन इट इनवर्सली। ठीक है, उल्टा, मतलब टाइम जो अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी एक्चुअली कम होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी के बारे में हम बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, वन इज द डिस्टेंस दैट इज लेंथ एंड द सेकंड इज टाइम। ओके, बट इट डिपेंड्स लाइक दिस। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो इस तरह से हमको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो डायमेंशंस के लिए हमको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस रखना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से है, तो ये हमको पता है ऑलरेडी, एक तो मास है, दूसरा लेंथ है, तीसरा टाइम है, चौथा फिर है टेम्परेचर जिसको हम सपोज थीटा से डिनोट कर सकते हैं, फिर पांचवा है, देखो ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके सिंबल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, लाइट। हाँ, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, करंट, लाइट। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट को हम डिनोट करेंगे आई से, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं कैंडेला से, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी तो है जिसको हम डिनोट करेंगे एन से, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, रिमेंबर। तो ये सारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये इनमें से कौन से क्वांटिटीज इसके अंदर आ रहे हैं चेक करो एक बार। क्योंकि देखो डायमेंशंस जब हम देखेंगे ना तो डायमेंशंस के अंदर एन का कोई ना कोई पावर आएगा यहाँ पे, फिर लेंथ का भी कोई ना कोई पावर आएगा, दूसरा टाइम का भी कुछ ना कुछ पावर रहेगा, टेम्परेचर का कुछ ना कुछ पावर यहाँ पे रहेगा, फिर करंट का भी कुछ ना कुछ पावर, फिर नंबर ऑफ मोल्स का भी एक पावर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसका भी एक पावर, ऐसा रहेगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन जनरल। ओके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो इस तरह से हमको दिखाई देगा। लेकिन अभी इनमें से जरूरी नहीं कि सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ये क्वांटिटी डिपेंड करे, है कि नहीं। जैसे कि वेलोसिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो वो सिर्फ दो ही फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ और दूसरा टाइम, बस खत्म। बाकी सब उसके ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता है।
तो इसलिए बाकी सबका जो पावर है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे जो स्टार लिखा हुआ है ये 0 0 0 0 रहेगा। सिर्फ यहाँ पे l और t के पावर्स यहाँ पे आएंगे, जिसकी वजह से उसको हम लिखेंगे इस तरह से l raised to 1 and t raised to -1. Why this t raised to -1 is there? Because t is present in the denominator. Remember. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्चुअली, dimensions of v will actually be the dimensions of distance which is L1, क्योंकि डिस्टेंस मतलब एक तरह से लेंथ ही तो है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ ही ऐसा क्वांटिटी है जो डिस्टेंस के साथ इक्विवेलेंट बनता है। इसलिए हमको डिस्टेंस हो या रेडियस हो, हाइट हो, ब्रेड्थ हो, या कोई भी ऐसा क्वांटिटी हो जो कि एक लेंथ के डायमेंशन वाला दिखता है, उसको हमको L से डिनोट करना है, ठीक है। और बाकी फिर टाइम हो या टाइम इंटरवल हो या जो भी टाइम के साथ दिखने वाले क्वांटिटीज है उसको हमको टाइम से t से डिनोट करना है, कैपिटल T से। तो यहाँ पे डिस्टेंस के बदले यहाँ पे L1 आ जाएगा और नीचे टाइम के लिए T1 आ जाएगा। लेकिन हमको पता है ऑलरेडी डिनोमिनेटर के अंदर T1 लिखना मतलब ऊपर जाके क्या बनेगा, वो T-1 बन जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, रिमेंबर, ठीक है। वेलोसिटी के डायमेंशंस ये है, लर्न करो 2 मिनट में। वेलोसिटी के डायमेंशंस जो है वो L1 T-1 है। इसको हम यूनिट से भी इक्वेट कर सकते हैं। देखो मीटर पर सेकेंड ये यूनिट है ना वेलोसिटी का, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। Time. L1 T-1 becomes the dimensions of velocity in this. Velocity. Yes. अभी एक्सेलरेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो देखो एक्सेलरेशन इज एक्चुअली डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट है, ये उसका डेफिनेशन है। तो अगर हमको एक्सेलरेशन का डायमेंशंस अगर ढूंढना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरूर चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम के डायमेंशंस से, ओके। तो अभी देखो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, अभी जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि अगर मान लो तुम्हारे को चेंज निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी, by using this final velocity minus initial velocity, करेक्ट है, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अभी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अगर रहा होगा सपोज 25 मीटर पर सेकेंड और अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसका आंसर क्या आएगा, जरूर ये बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकंड। यस। तो अभी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो नंबर बचता है उसको भी तो मीटर पर सेकेंड लगता है कि नहीं। इसीलिए हमको ये समझना है कि चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट है वो वेलोसिटी के यूनिट के बराबर ही रहेगा। तो जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट होगा। इसलिए डायमेंशन के बारे में भी वही ट्रू है। डायमेंशन के बारे में भी हम वही बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट है वही वेलोसिटी का यूनिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का जो डायमेंशन हमको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी का जो डायमेंशन दिख रहा है वही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, मतलब L1 T-1 करेक्ट। एंड टाइम का जो है वो है तो T1 T1 obviously if you just take this T1 in the numerator then it will actually become L1 and T-1 minus 1। समझा कैसे, ये T1 जो है वो ऊपर जाके -1 बन गया, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी -1 यहाँ पे है तो -1 will become -2 actually, and hence finally we can say that the acceleration will have the dimensions that is L1 and T-2। ये समझा ठीक से, T-2 कैसे आया, okay। Even we can sir. figure out from the unit also, that is meter per second square। Just see here, meter is the unit of length and second is the unit of time, but it is present in the denominator and also squared, therefore it will be L1 T-2, that's all। We can write this as meter second raised to -2, correct है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा लिखना और मीटर सेकंड रेज़ टू -2 लिखना एक ही बात है, एक बराबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी पॉजिटिव पावर होता है वो ऊपर जाके नेगेटिव पावर बन जाता है। इस तरह से हमको ये एक्सेलरेशन के डायमेंशंस मिल गए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ एरिया, इट इज वेरी सिंपल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये उसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से ही हम उसका डायमेंशंस निकाल सकते हैं आराम से। तो एरिया का L-2 L+2 प्लस, हाँ, क्योंकि देखो लेंथ का डायमेंशन L1 होगा और ब्रेड्थ का डायमेंशन फिर से L1 होगा, क्योंकि बताया मैंने कि लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या हाइट हो,
तीनों के डायमेंशंस लेंथ के बराबर ही हम काउंट करेंगे, उसको एक तरह से लेंथ ही काउंट करेंगे, इसलिए लेंथ इनटू लेंथ विल बिकम लेंथ स्क्वायर, दैट मींस L2 will be the dimensions of area. It's that simple. In the same way here, volume. Volume का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, length into breadth into height. करेक्ट है, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का. तो वॉल्यूम का डायमेंशन फिर क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन, ब्रेड्थ का डायमेंशन, हाइट का डायमेंशन. यस, सो इट विल बी L क्यूब, दैट्स इट. क्योंकि हर एक जो है वो लेंथ के बराबर ही है, इसलिए इन तीनों का डायमेंशन L1 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 होगा. तो जो कंबाइन होने के बाद अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसेस इन मैथमेटिक्स वी कैन जस्ट हैव इट एज L3 as the final dimensions of volume. It is that simple in this way. Even density का भी हम निकाल सकते हैं आराम से. देखो, density is actually defined as the mass upon volume. करेक्ट है, mass upon volume. तो अगर हमको इसका डायमेंशन चाहिए तो density is suppose denoted by rho. Okay, and mass का जो डायमेंशन है वो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा और नीचे वॉल्यूम का डायमेंशन भी रखना पड़ेगा. ठीक है, अभी इसमें हम जानते हैं कि मास का डायमेंशन क्या होता है. मास का डायमेंशन तो मास ही है, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, तो इसलिए m1 will become the dimensions of mass. Okay, and what about volume? You have just pointed out here, that is L cube, right? So if we just put the dimensions of volume here, then we can just get it as L cube, and but it is in the denominator, correct है, तो ये तो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, इसलिए वो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा. L-3. Yes, yes, very good. So it will be M1 L-3. That's all. So this becomes the dimensions of density, that is M1 L-3 in this way. तो ये जो simple quantities है, तो इनके dimensions हमको इस तरह से मिल सकते हैं आराम से. Can you find out the dimensions of the momentum? Just tell me. Do it yourself. Momentum. Formula already तुमको पता है. It's defined as mass into velocity, correct है? Just put the dimensions of mass, put the dimensions of velocity, and get the dimensions of momentum first. Sir, M1 L-T, L-1 T1. Repeat again. M1 L-1 T1. Why L-1 will be there? Sir, because it's because velocity, because that velocity. No, wait a minute. Sorry. ML1 T-1. Correct. M1 L1 T-1. T-1. Yes, correct. Okay, so we'll just do it here. ये तो हो गया लिख के. स्क्रीनशॉट ले रहे हो? Let's take the screenshot. Okay. Yes. So if you want to find out the dimensions of momentum, then you have to recall the formula, that is mass into velocity, that is P is equal to mv. So dimensions of P will be dimensions of m into dimensions of v, where m is the mass, so its dimensions will be simply m1, and dimensions of velocity we have just formed it up, L1 T-1. L1 T-1. If we just attach it here, then we can be able to get this as m1 L1 T-1 will be the dimensions of momentum. Like this. Okay. If you want it for force का होता है फॉर्मूला mass into acceleration, करेक्ट है? तो फोर्स का जो फॉर्मूला है mass into acceleration, उसका डायमेंशन फिर डायमेंशन ऑफ mass into डायमेंशन ऑफ
एक्सेलरेशन, acceleration. जिसमें मास का डायमेंशन फिर से m1 रिप्लेस हो जाएगा और एक्सेलरेशन का जो कि हमने ऑलरेडी अभी डिराइव करके रखा है L1 t minus 2, याद है? Yes sir. देखो उसकी यूनिट से भी उसका डायमेंशन मिलता है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो तो तुमको ऑलरेडी पता है, तो उससे तुमको डायमेंशन मिल जाएगा उसका L1 t minus 2, that's it. And if we just combine this here, then we can get it as m1 L1 t minus 2. It's that simple. In the same way, if you want to find out the dimensions of impulse, suppose अभी देखो ठीक से impulse का dimension क्या है? Impulse is equal to force into time, ये उसका फॉर्मूला है. तो अभी impulse को अगर डिनोट करेंगे J से और force को F से और time को T से, तो dimension of impulse will actually be equal to dimension of the force into dimension of time. That's it. So here dimensions of impulse will actually be equal to, yes, what are the dimensions of the force? See here, this has to be replaced here as it is. Okay, तो यहाँ पे आएगा m1 L1 t minus 2 और t into t मतलब t1, right? हाँ yes sir. तो अभी यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने होंगे हमको, जिससे यह बनेगा m1 L1 just kept as it is, but here t raised to minus plus 1, plus 1 which will make it minus 1. minus 1. Minus 1. Yes sir. Yes, so we can just get it as M1 L1 t minus 1. t minus 1. That is the dimensions of impulse. Impulse. Yes. Next is, suppose we want to find out the dimensions of work done, which is defined as the force into displacement, right? So W is equal to F into S. ये formula है. So dimensions of work done will actually be equal to the dimensions of the force into dimensions of displacement. Displacement. Where the dimensions of the force is already there. M1 L1 t minus 2. Just learn it as it is. Force का dimension learn ही करके रखो, क्योंकि कई बार लगने वाला है हमको आगे चल के. तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशन लर्न होना जरूरी है, जो कि M1 L1 t minus 2 और उसको अगर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, जो कि एक तरह से लेंथ ही है ना, लेंथ, तो इसलिए उसको L1 से डिनोट करना पड़ेगा. तो L1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसेस M1 L2 t minus 2. यस, तो यहाँ पे L1 will get added together and it will become L2 here, and t minus 2 just kept as it is here. This is the dimensions of work done as a final. In the same way, we can just find out the dimensions of power also. Power is defined as work done upon time. Okay, so dimensions of power symbolic form में पहले लिख देंगे इसको W upon T. Okay, अभी डायमेंशन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब डायमेंशन होता है, याद रखो ठीक से. डायमेंशन अप्लाई करना मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लिखना, हर एक टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट हमको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल. तो ये बन गया हमारा डायमेंशन ऑफ, ठीक है. अभी डायमेंशन ऑफ पावर विल डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ वर्क डन. सो वर्क डन का डायमेंशन ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, जो M1 L2 t minus 2 एज इट इज रिप्लेस कर सकते हैं. दैट इज M1 L2 t minus 2. And if we just divide it by the dimensions of time, that is T1, it will go up and become negative, so that it will become 4 minus 4. नहीं, wait, T minus 2 minus 1 ना, हाँ sorry 3, तो फिर वो minus 3 बनेगा actually. So M1 L2 T minus 3. These are going to be the dimensions of power. Yes. Okay. Can you find out the dimensions of pressure then? अभी भले यहाँ पे हमने मोमेंटम को भी P से डिनोट किया है, पावर को भी P से डिनोट किया है, प्रेशर को भी P से डिनोट करने वाले हैं. Doesn't matter. Just don't get confused. Pressure is actually defined as, actually definition matters. Okay, definition क्या है उसका, वो ज्यादा मैटर करता है. Force upon area. So P will be actually equal to F upon A. So if you just try to find out the dimensions of pressure, then you have to replace the dimensions of the force and divide by the dimensions of area here. जो कि अभी dimensions of the force देखो यहाँ पे M1 L1 T minus 2 है,
जिसको हमको एरिया के डायमेंशन से डिवाइड करना है। अभी एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L2. लेंथ, हाँ yes sir. Yes, so L2 which will go up and become negative, and finally we can just get that the dimensions of pressure will actually be equal to -2. M1. हाँ, L1 ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा L1 minus 2 and T minus 2 kept as it is, so that finally 1 minus 2 क्या बनता है? -1 बनेगा। 1 -1. -1, इसलिए वो M1 L minus 1 and T minus 2, these are going to be the dimensions of Pressure. like this. Okay, just write down all these things or just take the screenshot and learn all these things. Just practice it again. हर एक का डायमेंशन निकालने के लिए खुद होके प्रैक्टिस करो ठीक से, so that we'll be fluent to find out the dimensions in the next lecture. नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूछने वाला हूँ कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। बोले एटलीस्ट तुमको लर्न ना भी हो तो भी एटलीस्ट निकालने आना चाहिए ऑन द स्पॉट, ओरली। हाँ, ओके, फिनिश विद दिस। यस, ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर। Okay, we will find out the dimensions of some more quantities, that is like resistance or potential difference or charge and so on in the next lecture. Okay, and also we'll see the uses of this dimensional analysis. ये जो हमने dimensions निकाले उसका फायदा क्या है, क्यों हम ये dimensions निकाल रहे हैं एक्चुअली, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Okay, so चलो, thank you all of you.